આપણા દેશમાં અત્યારે સૌથી મોટો મુદ્દો છે તો તે છે સમીર વાનખેડેના ન્યાય માટે લડાતો મુદ્દો। જી હા, જ્યારથી જ આર્યન ક્રૂઝ ડ્રગ્સ કેસની અંદર આપણે જોયું છે કે નવા નવા વળાંકો આવતા ગયા છે અને આ વળાંકોની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક નવાબ મલિક અને એની સામે એટલે કે એનસીપી વર્સિસ એનસીપીની જંગ છેડાઈ છે, ત્યારથી જ સમીર વાનખેડે અને તેના પરિવાર પર જાણે આપ તૂટી પડ્યું છે। હવે જેને ખોટું કર્યું છે અને તેના પર આપ તૂટી પડે તો આપણે સમજીએ પણ ખરા કે ભાઈ એનો વાંક હતો અથવા ક્યાંક ને ક્યાંક એ કોઈ ને કોઈ રીતે કડગરામાં છે, પરંતુ જેના કારણે આખો મામલો સામે આવ્યો છે, જેને દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી ટેકનિકલ ધોરણે ન્યાયિક ધોરણે કર્યું છે, એ વ્યક્તિ કઈ રીતે તકલીફમાં મુકાઈ શકે? આ સામાન્ય સવાલ છે। સમીર વાનખેડે જેના પિતા આજે જનતા કા મુકદ્દમા પ્રદીપ ભંડારી સાથે જોડાયા અને તેમને પત્ની પણ પ્રદીપ ભંડારી સાથે આજે જોડાયા। દેશમાં માત્ર જનતા કા મુકદ્દમામાં આ બંને વ્યક્તિ જોડાયા એટલે કે સમીર વાનખેડેનું પરિવાર આજે જનતા કા મુકદ્દમામાં જોવા મળ્યું। સ્પષ્ટ રીતે તેમના પિતાએ જણાવ્યું કે અનેક પ્રકારની તકલીફ થઈ રહી છે, અનેક પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, અનેક પ્રકારની ધમકીઓ મળી રહી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારને મેન્ટલી, ઇમોશનલી, સાયકોલોજીકલી તોડી નાખવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સમીર વાનખેડે સાચા અર્થમાં દબંગ છે। સાચા અર્થમાં તેમની પર્સનાલિટી જે છે તે જે બોલે છે અને એના કરતાં પણ તેમનું કામ જે બોલે છે એનાથી દેશ સમગ્ર વાકેફ છે કે વ્યક્તિ કઈ દિશા તરફ આપણા દેશ માટે જઈ રહ્યો છે। સ્પષ્ટ રીતે તેમના પિતાએ કહ્યું કે જે રીતે તેમને ધમકી આપવામાં આવે છે તેને 6 મહિનાની અંદર બરતરફ કરવામાં આવશે, કંઈક ને કંઈક કરવામાં આવશે, તે બિલકુલ અયોગ્ય વાત છે। અને જે રીતે તેમને એ પણ વાત કરી પ્રદીપ ભંડારી સાથે કે આ એક એવા પ્રકારનું મહાભારત રચી નાખવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં મારા દીકરાને અભિમન્યુ બનાવીને ફસાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તે અર્જુન બનીને બહાર નીકળશે અને અર્જુન બનીને જીતીને પણ બતાવશે। આ ચક્રવ્યૂહ તો છે જ। આ ચક્રવ્યૂહમાં કોણ છે? આ ચક્રવ્યૂહમાં કોઈ કર્ણ નથી, આ ચક્રવ્યૂહમાં કોઈ દુર્યોધન નથી। આ ચક્રવ્યૂહમાં એ જે દુર્યોધન અને કર્ણ હતા તેની જગ્યાએ આજનું રાજકારણ છે, આજના પોલિટિશિયન્સ છે, આજની સિસ્ટમ છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ છે। આ તમામ લોકો ભેગા મળી અને સાથે સાથે સેલિબ્રિટીનો પણ મોટો હાથ છે, કારણ કે શાહરૂખ ખાનનો દીકરો છે એટલે કોઈ પણ ધોરણે કોઈ પણ એંગલ આ કેસ લઈ જવાની કોશિશ કરવામાં આવતી હોય તેવું સ્પષ્ટપણે લોકોને લાગે છે। પરંતુ શું સજા સેલિબ્રિટીઓ માટે ન હોઈ શકે? શું સજા તેમના દીકરાઓ માટે ન હોઈ શકે? સમીર વાનખેડે જે કરી બતાવ્યું છે એનાથી દેશ પણ તેમને આજે માની ગયો છે, પૂજી રહ્યો છે। અને ચોક્કસ વાત છે કે જો આ રીતે આવા વ્યક્તિ જો ઈમાનદારીથી કામ કરતા હોય અને તેમના પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવે, તેમના પર આંગળી ચીંધવામાં આવે અને તેમને વારંવાર કટઘરામાં મૂકવામાં આવે તો કદાચ આપણે પણ વિચારવું પડશે કે શું સાચા લોકો જોડે આ વસ્તુ થાય તો આપણી જોડે કાલ સવારે આવું કંઈ નહીં થઈ શકે। ત્યારે આ તમામની વચ્ચે તેની પત્ની પણ એટલે કે સમીર વાનખેડેની પત્ની પણ પ્રદીપ ભંડારી સાથે જોડાઈ અને તેને સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે જો અમે ખોટા કામ કરતા હોત, ખોટી રીતે રૂપિયાઓ કમાતા હોત તો અમે મોટા બંગલામાં રહેતા હોત, પરંતુ નહીં, અમે બંગલામાં નહીં, એક સામાન્ય ઘરમાં રહીએ છીએ, એક સાચા સારા પરિવારની જેમ રહીએ છીએ। ત્યારે હવે તેનો પરિવાર આવી ચૂક્યો છે જનતા કા મુકદ્દમામાં અને તે પણ ચાહે છે કે તેમને કોઈ પણ રીતે ન્યાય મળે। આ ન્યાય માટે બધા લોકો એક થવું પડશે। દેશ જોઈ રહ્યો છે, દેશ જાણી રહ્યો છે, દેશ સમજી રહ્યો છે કે ક્યાં કોને શું સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, એ સપોર્ટની પાછળ કોનો હાથ છે અને એની પાછળના કયા રાજકીય સમીકરણો છે। પરંતુ શું રાજકારણ લોકતંત્ર કરતા ઉપર છે? શું રાજકારણ અને સેલિબ્રિટીનો પાવર ન્યાયની ઉપર છે? આ આખી ઘટનાને આજે આપણે જોઈશું, સમજીશું અને કેસને કેવી રીતે ખોટી દિશામાં ધકેલવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે, કેવી રીતે સમીર વાનખેડે પર પ્રેશર બનાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે અને છતાં પણ કેવી રીતે તે આ કેસ પર અડગ છે, દેશ માટે કામ કરી રહ્યા છે। જોઈશું જનતા કા મુકદ્દમામાં પ્રદીપ ભંડારી સાથે। देश बनाता कौन है? जनता। लोकतंत्र में सबसे मौन कौन है? जनता। हर सरकार का मालिक कौन है? जनता। फिर भी सबसे बेचारा कौन है? जनता। अब करना होगा हर फरियाद का सामना। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पूरा का पूरा मामला साफ है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर समीर वानखेड़े जिसने अपनी खून पसीने की मेहनत से
सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर किया, जिसके पिताजी एक एक्स पुलिस ऑफिसर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, वो ऑफिसर आज एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा होता हुआ दिख रहा है। उस ऑफिसर पे क्या एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। दोस्तों, समीर वानखेड़े क्या गलती है? समीर वानखेड़े की यही गलती है कि उसने लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो किया। उसने ये नहीं देखा कि जो एक्यूज्ड है वो कौन से अमीर या पावरफुल बाप का बेटा है। उसने सिर्फ ये देखा कि उसको जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली, उस हिसाब से उसने कानूनी रूप से कार्रवाई करी। उस कार्रवाई को एनडीपीएस कोर्ट ने भी मान्य ठहराया और एक्यूज अभी भी बेल पे बाहर नहीं हुए हैं। और कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 35 में कहा था कि एक्यूज नंबर 1, 2 एंड 3 ने प्राइमा फेसी ग्रेव और सीरियस ऑफेंस कमिट किए हैं, जो सेक्शन 29 और सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट में आते हैं। तो अपना काम को ऑनेस्टली करने के लिए, इस देश की सेवा को न्यायपूर्वक करने के लिए समीर वानखेड़े को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसको महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक और बाकी के नेताओं द्वारा किए जा रहे निजी आरोप झेलने पड़ रहे हैं। उसकी फैमिली को इस पूरे केस में ड्रैग किया जा रहा है। ये वही फैमिली जिसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसको फर्जी कहा जा रहा है, तमाम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और वो ऑफिसर जो आज अपना काम न्यायपूर्वक कर रहा है, उसको ये राजनीति का और ये राजनीतिक षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है। आज देश समीर वानखेड़े के साथ में है, क्योंकि देश चाहता है कि देश नशा मुक्त हो, बॉलीवुड नशा मुक्त हो, और जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर अपना न्यायपूर्वक काम करे, उसके साथ ये देश खड़ा रहेगा। तो भले झूठे आरोप लगाए जाए, भले नवाब मलिक और बाकी के तमाम नेता उनके धर्म को झूठा ठहराए, भले उनके फैमिली के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर निजी टिप्पणी हो, भले उनकी बीवी के ऊपर निजी टिप्पणी हो, पर समीर वानखेड़े इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में सिर्फ एक बात कह रहा है, सत्यमेव जयते, और न्याय की जीत हो। और इसीलिए आज ये देश पूरा समीर वानखेड़े और एनसीबी के साथ खड़ा है, क्योंकि एक तरफ षड्यंत्र है, दूसरी तरफ तथ्य है। और आज का मेरा मुकदमा देश की जनता का मुकदमा है। और हां, नाम समीर वानखेड़े है, और नाम समीर वानखेड़े है जिसका मतलब सच्चाई है, जिसका मतलब ऑनेस्टी है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यायपूर्वक काम करना है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है। देश की जनता इस वक्त ये पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के खिलाफ खड़ी हुई है, और देश की जनता का आरोप है बॉलीवुड ड्रग माफिया के खिलाफ जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं एनसीपी के नेता। और इसीलिए मेरी दलील है, जो देश की जनता की दलील है, जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ खड़ी है। राजनीति के प्रयास में यह देश कह रहा है कि समीर वानखेड़े के परिवार पर हमला करना बंद होना चाहिए। यह न्याय संगत नहीं है, और देश इसके खिलाफ खुलकर बोल रहा है। आज मैं वो सब के सब की विटनेस और उन लोगों से बातचीत करने वाला हूं जिनका नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मेरे साथ मनीष भानुशाली जुड़ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं और बीजेपी के भी पार्ट है। मनीष भानुशाली जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भानुशाली जी, मैं ये नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी प्रोब जो है वो फर्जी है,
नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि केपी गोसावी पूजा रडलानी से मिले थे, जो शाहरुख खान की मैनेजर है। क्या आपके सामने कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और मेरे पे जो आरोप लगे थे, हमारी पार्टी पे आरोप लगे थे, उसकी मैंने सफाई आपके चैनल के द्वारा, दूसरे चैनल के द्वारा दे चुका हूं। और ये इसमें राजनीति कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केस के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या आप केपी गोसावी को जानते हैं? केपी गोसावी को ये केस से पहले 2-5 दिन पहले से जानता हूं, और 2 तारीख के बाद मैं उनको न मिला हूं न मेरी बात हुई है। इसके पहले आप उनको जानते थे? 5 से 7 दिन पहले जानता था, 5 से 7 दिन पहले। रेड के 5 से 7 दिन पहले? जी बस 5 दिन पहले। कैसे आपकी मुलाकात हुई केपी गोसावी से? आपकी मुलाकात केपी गोसावी से कैसे हुई? वो मैं किसी मित्र को मिलने गया था, तो वहाँ वो भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे मित्र हैं, वहाँ मेरी मुलाकात हुई उनके साथ। मुझे बताइए, नवाब मलिक पूरी प्रोब पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं फर्जी है। क्या आपकी कभी शाहरुख खान के मैनेजर से मुलाकात हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई है। केपी गोसावी ने कभी आपके सामने शाहरुख खान के मैनेजर से बात करी थी? मेरे सामने ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। मेरे ये कोई भी बात मेरे जानकारी में नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना था, 1 तारीख को मुझे जानकारी मिली थी, वो मैं इनके साथ, गोसावी जी के साथ जाके वानखेड़े साहब के पास, जो उनके अधिकारी थे, सिंह साहब शायद नाम उनका, उनके साथ हमने जानकारी शेयर की। फिर इन्होंने वानखेड़े साहब को बताया कि सर अपने पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन इनके पास भी है, और ये इनके पास नई इन्फॉर्मेशन आ रही है रेड के दिन भी, तो ये हमारे साथ में रहेंगे तो हमें रेड करने में आसानी रहेगी। तो हमारा इतना रोल था 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का। बाकी इसमें अभी जो भी मिले लोग, उनको उन्होंने अरेस्ट किया और विटनेस के तौर के ऊपर हमारे सामने ही मतलब बोला कि इस रेड के बारे में मनीष भानुशाली जी, एनसीबी को इंफॉर्मेशन आपने दी कि आपको इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन दी कि एनसीबी ने आपको बुलाया था? आपने इंफॉर्मेशन दी थी एनसीबी को कि वाइस वर्सा हुआ था? जी, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी एनसीबी को। कब? 1 तारीख को हमारी बातचीत हुई किसी एक बंदे से, तो उन्होंने बोला कि साहब ने आपको 2 तारीख को बुलाया है, अगर आप 2 तारीख को मॉर्निंग में आ जाइए वहां पे। आपने 1 तारीख को इंफॉर्मेशन एनसीबी को दी थी? हाँ, हमने किसी एक बंदे को बोला था, तो उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ सर से, और आपको 2 तारीख को सुबह बुलाया ऑफिस में, एनसीबी ऑफिस, और हम मॉर्निंग में उधर एनसीबी ऑफिस पहुंचे थे 9 बजे। क्या रेड के बाद आपकी समीर वानखेड़े से बात हुई थी? बिल्कुल नहीं, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। क्या पिछले कुछ दिनों में आपकी समीर वानखेड़े से बात हुई? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुई। तो आपको क्यों लग रहा है नवाब मलिक इतने निजी आरोप क्यों लगा रहे समीर वानखेड़े पे? देखो, हमने खाली इनको इंफॉर्मेशन दिया वानखेड़े सर को, मतलब इनके जो सिंह करके अधिकारी थे उनको, उन्होंने सर से मिलाया कि सर इनके पास जो, हमारे पास भी कुछ न्यूज आई है, बाहर से भी कहीं से खबर आई है, इनके पास भी कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी है, और अच्छा है, हमारे केस में मदद मिलेगी, इनके साथ में रही हो। और वानखेड़े सर ने बोला कि इमीडिएटली चलो, ये आप अगर देश हित में आ रहे हो, बड़ी बात है, और मैं भी आपके मतलब जी, आप इंडिपेंडेंट, आप इस केस में इंडिपेंडेंट विटनेस है, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जान को भी खतरा है? क्योंकि केपी गोसावी ने कहा था कि 3 अक्टूबर के बाद से उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। मनीष भानुशाली, इंडिपेंडेंट विटनेस, के आपको भी थ्रेट कॉल्स आए, आपको भी खतरा हो रहा है मुंबई जाने में? बिल्कुल खतरा हो रहा है। इसके लिए मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो उन्होंने इतना एक्सपोज कर दिया कि ये यहाँ रहता है, ये इसका घर है, इतने साल से ये यहाँ रह रहा है। एक्चुअली जो भी पंच होते हैं, विटनेस होते हैं, उनका नाम बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल अगर ये हाल होगा, कल उठ के किसी को देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें अगर कोई इंसान आएगा कैसे? अगर ये सब होगा, जान का धोखा उसके ऊपर हो जाएगा, तो कौन आगे आएगा?
मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक और चीज, आपके काफी दर्शक यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको डर हो रहा है मुंबई जाने में, और अगर हो रहा है तो कब से आपको ये डर हो रहा है? बस मेरे को तो जैसे इन्होंने नवाब मलिक जी ने जो 6 तारीख को जो आरोप लगाया और उन्होंने पूरा डिस्क्लोज कर दिया कि ये कार्यकर्ता है और ये सब बीजेपी का कराया है, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खुला करके रख दिया कि ये मनीष भानुशाली ये बीजेपी ने कराया धराया है, बीजेपी का कार्यकर्ता। बहुत बड़ा एलिगेशन है ये। मेरे साथ कुछ ही समय में समीर वानखेड़े के फादर जुड़ने वाले हैं। कुछ ही समय के अंदर समीर वानखेड़े के फादर जुड़ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहे। पर इस वक्त मेरे साथ इस वक्त फ्लेचर पटेल जुड़ रहे हैं। फ्लेचर पटेल, आपका भी नाम नवाब मलिक ने ड्रैग किया था, प्रेसिडेंट सैनिक फेडरेशन के हैं आप। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी एक सोल्जर रह चुके हैं। मैं फ्लेचर पटेल जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों को बता सकता हूं, ऐसा हो सकता है कि समीर वानखेड़े की वाइफ भी हमारे साथ जुड़ सकती है, तो मैं चाहता हूं मेरी टीम जो है इस पर मुस्तैद रहे। फ्लेचर पटेल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवाब मलिक ने कहा है कि आप टेरर फैला रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि वो टेरर फैला रहे हैं, आप नवाब मलिक को क्या कहना चाहते हैं? Thank you, Bhandari ji. Thank you for taking me on the call. समीर वानखेड़े साहब का नाम बार बार आज हर एक चैनल पे उछला जा रहा है। So let me tell you, समीर वानखेड़े साहब के बारे में ये जो कुछ घिनौने आरोप प्रत्यारोप हो रहे, इसकी मेरी संगठना सैनिक फेडरेशन और निंदा करते हैं, हम इसका निषेध करते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तौर पे जो इस वायलेशन करते हैं लॉ का, वो उन्हीं पे हाथ डालते हैं। लेट मी टेल यू, ये किसी पर्सनल या किसी दामाद पे, किसी लड़के पे, कोई वीआईपी पे हाथ डालने के लिए नहीं है। संगठन जो है, ये जो एजेंसी है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। जो भी इस एविडेंस के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये इसको टेम्परिंग करने की कोशिश करे, जैसे अभी जस्ट जो एक पंच की अभी बात हो रही थी, मैं भी कुछ केसेस में पंच हूं, और बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर इन द स्टेट, दिस इंडिविजुअल मिनिस्टर शुड अंडरस्टैंड कि ये एविडेंसेस को और केस को लूज करने की कोशिश हो रही है। फ्लेचर पटेल जी, का आपने ऐसे खुलेआम एड्रेस। फ्लेचर पटेल जी, आप मेरे साथ बने रहे। फ्लेचर पटेल जी, मैं 2 मिनट रुकिए मेरे साथ जी। 2 मिनट के अंदर समीर वानखेड़े जी के फादर ज्ञानदेव वानखेड़े जी जुड़ने वाले हैं। 2 मिनट के अंदर लाइव फ्रेम आप देख सकते हैं। जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े जुड़ चुके हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपनी पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगाया है। ज्ञानदेव वानखेड़े जी मेरे साथ जनता का मुकदमा पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्ञानदेव वानखेड़े जी, नवाब मलिक कह रहे हैं दाऊद वानखेड़े, वो कह रहे हैं समीर वानखेड़े जी का रियल नेम समीर दाऊद वानखेड़े है। ये दाऊद वानखेड़े कौन है? ज्ञानदेव वानखेड़े जी। सर, मैंने 35 साल डिपार्टमेंट में काम किया, कभी भी कोई ये चीज का जिक्र ना है। दाऊद तो पहली बार मैं सुन रहा हूं। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है, पैदाइशी नाम है। मेरे खानदान ने, मेरे माँ बाप ने नाम रखा। स्कूल में मेरा सर्टिफिकेट में है, कॉलेज के सर्टिफिकेट में है, एनसीसी के सर्टिफिकेट में है, पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट में है, मेरे डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट में है, और रिटायर होने के बाद में सर जो मिलता है निवृत्ति, उसमें भी मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। अभी दाऊद कहाँ से है? नवाब मलिक ने नया एक नया लेके आता, हैरान क्यों करना चाहता है मुझे नहीं मालूम साहब जी। ये सुबह नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट ट्वीट किया है, वो क्या आपके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? मतलब जिसमें वो कह रहे हैं एक सर्टिफिकेट दिखाया, उसमें उन्होंने समीर कुछ स्टार बनाया, कुछ ऐसा अंडर जी
ये सब नवाब मलिक ने कुछ डुप्लीकेट बनाया होगा, या उसके पास बहुत पावर है और रावण जैसा आदमी है, उसके 10 हाथ है, 10 सर है, जो पैसा है तो जो भी मन में आए कर सकता है। और डुप्लीकेट क्या नहीं बन सकता, हर चीज डुप्लीकेट बनती है। मेरा कभी नाम नहीं था, ना आगे भी रहेगा, ना था। हम हिंदू धर्म के लोग हैं। अभी दाऊद कहाँ से किसने किधर से लाया, हो सकता है इसने कुछ मैनिपुलेट किया होगा वो चीज को। ना मेरे डिपार्टमेंट में 35 साल किया हूँ, कभी भी कोई उंगली नहीं उठाया तू दाऊद है क्या ज्ञानेश्वर है, कभी कोई बोला नहीं। ना मैं धर्मांतर किया, ना जात चेंज किया। और मेरे मिसेस का तो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे अभी नहीं है उसका तो बेचारी वो 6 साल हुआ नहीं है, नहीं तो वो होती तो और अच्छा होता, लेकिन उसने लिख के गई, अपना एफिडेविट बना के गई हो। तो मैं देश की जनता आज ऑनेस्टी के साथ है, आपके बेटे के साथ है, आपके साथ है। समीर वानखेड़े जी के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली को ट्रिमेंडस मेंटल और इमोशनल प्रेशर है, उनको दुख हो रहा है कि न्यायपूर्वक काम करते हुए पर्सनल डिफेमेटरी एंड स्लैंडरस अटैक किए जा रहे हैं उन पर। आप एज अ फैमिली इस वक्त किस तरीके के मेंटल प्रेशर में है, क्योंकि आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ न्याय को फॉलो कर रहा है? मेरा बेटा सिर्फ एंड सिर्फ न्याय के लिए, अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए काम करता है। कभी भी जिंदगी में उसने अपने फैमिली के लिए काम नहीं किया। हाँ जरूर है, हमको बहुत प्यार करता है, लेकिन दुख इसी बात का तो दुख है कि वो जितना अच्छा काम कर रहा है, तो ये क्यों ऐसा उसके पीछे पड़ा होगा नवाब मलिक। हर चीज एक एक दिन एक एक लाता है, आज एक लाएगा, कल दूसरा लाएगा, परसों तीसरा लाएगा। इसके मन में क्या है? अभी इतना बड़ा नवाब मलिक मंत्री है, मंत्री महोदय है, अच्छी पोस्ट उसको दिया है। सब लोग मेरे बेटे के तरफ से 95% मेरे बेटे के तरफ से पूरी जनता है। खाली 2 चुटुर मुटुर लोग, 4-5 लोग ही ऐसे कि जो उसके विरुद्ध है। हो सकता है उससे कोई ड्रग्स से कोई कनेक्शन हो सकता है इन्वेस्टिगेशन पे इफेक्ट गिराने के लिए बीच में कुछ छोड़ता होगा हो सकता है मेरे बेटे को नाराज करने के लिए, उसका वो इन्वेस्टिगेशन तकलीफ देने के लिए बीच में कुछ करता हो सकता है उसके तार कहीं से कहीं जुड़े हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपको ये है, उसका भी, नवाब मलिक का भी, वो कभी बंबई में आया जी, बोलिए। नवाब मलिक कभी बंबई में आए, कभी उन्होंने भंगार का धंधा शुरू किया, भंगार से सोना कभी बनाया, कभी प्रॉपर्टी इधर किधर से कमाया, वो कभी वो एसपी में होके कभी राष्ट्रवादी में आया। वो उसका तो इंक्वायरी कीजिए, आपको सब मालूम पड़ेगा कि नवाब है क्या भंगार वाला, ये तो मालूम पड़ेगा। कभी भंगार वाला बोलता है मुझे गर्व है, कभी नवाब बोलता है मुझे गर्व है, तो है कौन? यही इसका ही पता नहीं हमको, ये कहाँ का, इसका तो इंक्वायरी करो। मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, इधर ही रहूंगा, इधर ही मरूंगा, इधर ही रहूंगा। ये तो कहाँ से लोग कहाँ अपने को क्या समझते मालूम नहीं। लेकिन हम अभी फिलहाल में, मेरी बेटी, मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहू, सब हम लोग तकलीफ में है कि इतना मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, पूरी जनता उसके साथ में है, तो ये आदमी को, महाशय को हमारी क्या तकलीफ है? ये बहुत तकलीफ होती है मुझे। ज्ञानदेव वानखेड़े जी, आप एक सिर्फ पिता ही नहीं, आपने ज्ञानदेव वानखेड़े जी, आपने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए दिया है, और आपका बेटा भी अपनी जीवन जो है देश की सेवा के लिए दे रहा है। पर जब ऐसा होता है, नवाब मलिक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फर्जी, एक्सटॉर्शनिस्ट, फ्रॉड, लायर, ये जब शब्दों का इस्तेमाल एक मंत्री द्वारा किया जाता है, कि आपके मन में पीड़ा नहीं होती? सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी डॉटर इन लॉ को गधेड़ा, इसके ऊपर गधेड़ा जा रहा है, आपकी बेटी के ऊपर बोला जा रहा है। तो जब इस तरीके के आरोप आपकी फैमिली पे रखते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत मेंटल प्रेशर हुआ होगा। सर, ये तो मेंटल प्रेशर है, एक तो अभिमान का भी प्रेशर है कि आदमी जो अभिमानी होता है, जो इज्जत से जीना चाहता है, लोग इज्जत से जीने भी नहीं देते, जो अच्छा काम करता है वो करने भी नहीं देते। अगर नवाब मलिक का माना जाए, ये इस किस्म के अधिकारी को जो ऐसी भाषा यूज करता है कि इसका यूनिफॉर्म निकाल दूंगा, उसको सर्विस में 6 महीने के, 1 साल के अंदर निकाल दूंगा, जेल में डालूंगा, ये कोई भविष्यवाणी कैसा कर सकता है साहब?
भविष्यवाणी करने के बाद दूसरे दिन कोई निकाल के लाता है, तीसरे दिन कोई निकाल के लाता है। इसका मतलब नवाब मलिक ये यही पीछे एक ही आदमी जो पीछे मेरे बेटे के पीछे लगा है। लेकिन उनको ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लोग तैयार है, महाभारत छिड़ी है, मेरा बेटा अभिमन्यु करके अंदर गया है और अर्जुन बन के वापिस आएगा, हम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हिम्मत है नवाब मलिक में, तो मेरा चैलेंज है, आजा कोर्ट में बोलना। देश की जनता आपके साथ है, कोर्ट में जाए, देश की जनता आपके साथ है, क्या करना है, देश की जनता आपके साथ है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की जनता आपके साथ को मेरा भी मैं भी अपने जनता को जो मेरे बेटे के साथ है, उन जनता से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहो ताकि उसका मॉरल डाउन न हो। आने वाली जनरेशन अच्छे अपने देश के लिए काम करेंगे। एक उदाहरण है समीर का, जो आने वाली जनरेशन के सामने जो मेरे बेटे का डीपी भी लगाते हैं, कोई कोई लोगों को तकलीफ होती, वही लोग है ये। लेकिन मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे बेटे का जो प्यार मिलता है, हम बहुत बहुत खुश होता हूं कि मैंने अपना अर्जुन जैसा बेटा मैंने पैदा किया। अभिमन्यु बन के तो घुसा है अंदर, अभी अर्जुन बन के महाभारत से वापस आएगा। जंग उसने चालू किया है, हम महाभारत हम खलास करेंगे अर्जुन बन के। क्या थ्रेट्स आ रहे हैं इस वक्त? ये मेरा चैलेंज है उसको, नवाब मलिक को। आपके बेटे ने आपको क्या कहा था? क्या बात की थी? क्या बेटा मेंटल प्रेशर के अंदर है? क्योंकि मैं जितना जानता हूं, मैंने एक ही चीज देखी है, ऑनेस्टी से काम कर रहा है। पर क्या थ्रेट्स आ रहे हैं फैमिली को? थ्रेट्स आ रहे हैं फैमिली को? थ्रेट्स भी आ रहे हैं, कोई गलत कमेंट्स भी करता है मेरे बेटी पे, मेरे बेटे पे, मेरे बहू पे। ये सब तो आते रहता है, इसको तो हम झेल सकते। लेकिन जो मेरे बेटे का जो मॉरल डाउन होना, जो इन्वेस्टिगेशन पे तकलीफ बोले तो बीच में राड़ा अटकाना, यही इन लोगों का उद्देश्य। इससे दुखी होता हूं कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है, ये समझ में नहीं आया। मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूं, आगे अटैक क्यों कर रहे हैं? को क्या कहूं, ये लोग क्यों पर्सनली अटैक कर रहे हैं? कुछ मैं कह रहा हूं समीर वानखेड़े ने तो किसी के ऊपर कुछ आरोप नहीं लगाया, अपना न्यायपूर्वक काम किया। पर्सनली आरोप क्यों कर रहे हैं? क्यों ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहे हैं? क्यों आरोप पर्सनली लगा रहे हैं समीर वानखेड़े पे? शायद हो सकता उनसे कोई कांटेक्ट हो, ये ड्रग वाले से कोई कांटेक्ट हो, नहीं तो उसका हमारा कोई पर्सन तो पहचान भी नहीं, मुलाकात भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये आदमी इतना एग्रेसिव कैसा हो सकता है? एक ईमानदार ऑफिसर पे ये भी एक प्रश्न है। हो सकता उसका वो ड्रग वालों से कोई कांटेक्ट हो सकता उसको पैसा मिलता हो सकता उसका जवाई अरेस्ट हुआ, उसका दुख हुआ हो सकता और कुछ निकलेगा, ये ड्रग के पार्टी से और कुछ निकलेगा, वो अपने इन्वेस्टिगेशन को रुकाना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। एक रावण कुछ भी कर सकता है। ये जब देश की जनता से समीर वानखेड़े ने बात की थी तो समीर वानखेड़े ने कहा था सत्यमेव जयते। आपसे समीर वानखेड़े ने, आपके बेटे ने क्या कहा था जब लास्ट टाइम बातचीत हुई थी? लास्ट में बातचीत हुई, डैडी तैयार रहो, मुझे ये आदमी कहां भी फंसा सकता है, कोई भी फंसा सकता है गलत फाल्स ये करके, तुम रेडी रहो और डरो भी मत। ये मेरे बेटे ने जाते जाते कहा कि तुम फिक्र मत करना, मैं काफी हूं, नहीं है तो तुम डरना नहीं। अपने औरत को बोला, अपने मिसेस को बोला, बेटी को बोला, मुझे बोला, मालूम नहीं मैं घर में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ये यहाँ तक के स्ट्रांग लोग है, पैसे वाले लोग है, ये कुछ भी कर सकते, तो तुम डरना नहीं, कार्रवाई करना। आपको डर लग रहा है समीर के? जरूर लड़ना, आप समीर कुछ हुआ तो ऐसा। एज अ फादर ज्ञानदेव वानखेड़े जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सत्य के साथ इस लड़ाई में हम भी खड़े हैं, देश की जनता भी खड़ी है, कोई कितना भी बड़ा हो। पर क्या एज अ पिता थोड़ी सी घबराहट होती है? क्योंकि समीर जो न्यायपूर्वक काम कर रहा है, जो पूरा का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके वो षड्यंत्र बड़ा हो सकता है। कभी घबराहट होती है कि समीर जो है इससे विजय रूप में निकलेगा? कभी एज अ पिता घबराहट हो रही है? घबराहट तो पूरी मुझे भी हो रही, मेरे बेटी को भी हो रही, बहू को भी हो रही है। लेकिन ये घबराहट से काम नहीं चलेगा। जब युद्ध छिड़ जाता है, आदमी युद्ध पे जाता है, तो फिर मरना और जीने का सवाल ही नहीं उठता है। एक बार लड़ाई छिड़ गई, अगर उसने लड़ाई शुरू किया तो अंत हम करेंगे वो लड़ाई का। महाभारत छिड़ा दिया उसने, तो हम उसका अंत हम करेंगे अभी कोर्ट में।
मेरे को बस 30 सेकंड और आपके चाहिए सर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, आप हौसला रखिए। देश की पूरी जनता आपके साथ है, हर सच्चाई से काम करने वाला व्यक्ति आपके साथ में, मैं आपके साथ हूं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा थोड़ा ये जो ये अभी क्या समीर का मॉरल डाउन हुआ है कि मॉरल एज स्ट्रांग एज एवर है? ये आज ये जो इंक्वायरी ऑर्डर करने की कोशिश की जा रही है कि समीर इज एज ये स्ट्रांग। सब देख के थोड़ा सा मॉरल डाउन हुआ था जी थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन रात में थोड़ा मॉरल अच्छा मुझे समझा के गया कि डैडी मेरा मॉरल तो और भी बढ़ गया है। ऐसे बहुत रोड़े आते, दुश्मन आते, तो डरना भी नहीं। मुझे भी बताया कि डरना नहीं, तुम भी मत डरो, मैं खुद लड़ाई लड़ूंगा, तुम साथ में है मेरे। ऐसा मेरा बेटा मुझे कह के मेरा गया। आखिरी और सवाल मैं आपके माध्यम जी। से जो मेरे बेटे के साथ जनता है जी। उनसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे खड़े रहो ताकि और ऐसे समीर जैसे पैदा हो और अपने देश की सेवा करे, अपने देश का वो नाम ऊंचा करे, अपना देश को आगे प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट को पैसा जमा करके दे, जैसा मेरे बेटे ने एयरपोर्ट में किया है, कस्टम में किया है, DRI में किया है। सब तरफ से मेरे बेटे ने गवर्नमेंट को हेल्प ही किया है। देश आपके साथ है। ज्ञानदेव वानखेड़े जी, आप घबराइए मत। महाभारत में विजय सिर्फ अर्जुन ही होता है, भले कौरव कितना भी बड़ा षड्यंत्र रच ले। मेरे साथ आप जुड़े, हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। संयम बना के रखिए, हौसला बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, ऑनेस्ट समीर वानखेड़े के ऑनेस्ट पिताजी, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी सर्विस दे दी, वो मेरे साथ जुड़े थे। देखिए देश की जनता कैसे समीर वानखेड़े का सपोर्ट करी। इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, मेरे साथ क्रांति रेडकर जी जुड़ रही हैं। जाबाज ऑनेस्ट ऑफिसर समीर वानखेड़े की वाइफ और मराठी एक्टर क्रांति रेडकर जी जुड़ने के लिए देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांति रेडकर जी, मैं आपके फादर से अभी जस्ट बातचीत किया और उन्होंने कहा कि समीर अर्जुन है, अभिमन्यु के रूप में महाभारत के अंदर गया है, अर्जुन के रूप में बाहर निकलेगा और देश की जनता उनके साथ में है। आप पर भी काफी निजी आरोप लगाए गए आपकी मैरिज को रिलेटेड। क्रांति जी, आप क्या कहना चाहती है इस वक्त? आप कैसे मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर है और आप देश की जनता को सबसे पहले क्या कहना चाहती है? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ ने एम्पली क्लियर कर दिया है सारे सर्टिफिकेट्स दिखा के कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुझे ऐसा लगता है कि सच पानी की तरह होता है। आप वो उसमें जरा भी मिलावट होती है तो कोई भी फटाक से बता सकता है, लेकिन जब सच क्रिस्टल क्लियर होता है तब उसकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। और वही आज आई थिंक सो मेरे फादर इन लॉ ने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाकर प्रूव कर दिया है। तो मैं अभी कहना चाहती हूँ कि आप बस कीजिए, प्लीज समीर जी को उनका काम करने दीजिए और उनको रोकने के नए नए पैतरे, रोज एक नया कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। इससे क्या हो जाता है ना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। मैं मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, सबको पर्सनली टारगेट करके ना मतलब काम करने की दिशा ही पूरी हमारी भटक जाती है। तो और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जब फैमिली पे अटैक होता है तो ऑब्वियसली बंदा कितना भी स्ट्रांग हो मेंटली, कितना भी जांबाज हो, पर व्हेन इट कम्स टू हिज फैमिली तो कहीं ना कहीं वो डगमगा जाता है, कहीं ना कहीं हौसला टूटने को आता है। बट हम समीर से सिर्फ यही कहते हैं कि आप डटे रहिए, आप मेहनत कीजिए, अच्छा काम कीजिए और हम आपके साथ हैं। समीर जी ने कहा था कि फैमिली इज अंडर ट्रिमेंडस इमोशनल एंड मेंटल प्रेशर। मैं उनकी दाद देता हूं ऑनेस्टली अपना काम करने के लिए, इसलिए पूरी देश की जनता उनके साथ है, मैं उनके साथ हूं। आप लोग ये प्रेशर को कैसे डील कर रहे हैं? आप पे भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए गए, आपके सिस्टर इन लॉ को भी इसमें खदेड़ा गया। हाउ आर यू डीलिंग विद सच इनॉर्मस मेंटल स्ट्रेस? रोज कोई ना कोई थ्रेट्स तो आते ही रहते हैं। अभी उसी दिन किसी ने लिखा, समीर एंड यू बोथ शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। मतलब किस चीज के लिए भाई, किस चीज के लिए? कि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। आज मैं भी चाहूँ ना कि बाहर मेरे बच्चे हैं घर में, उनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ,
उनके साथ में वक्त गुजारूं, मेरे फैमिली के साथ में टाइम गुजारूं। लेकिन आज मेरा ये पूरा समय, ये पूरी सारी क्लैरिफिकेशंस देने में अलग अलग न्यूज चैनल्स को जा रहा है, जो हम डिजर्व नहीं करते ऑनेस्टली, क्योंकि हमने काम हमारा बहुत ऑनेस्टी से किया है। हमारी छोटी सी दुनिया है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, एक समीर है, हमारे बच्चे हैं। इतना छोटा परिवार है, ना हम किसी के बीच में जाते हैं, ना हम कहीं कुछ किसी को बोलने जाते हैं, ना किसी के बीच में टांग अड़ाते हैं। हमारा खुद का एक छोटा परिवार है, हमें सुख से जीने दीजिए। समीर जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अगर वो कहीं भी कोई भी चीज के खिलाफ फाइट करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो गलत होती है। अभी उस चीज से उनको रोकना और उनके फैमिली पे पूरी तरह से इतने जोरदार प्रेशर को लाना, और वो भी झूठ के बिना पे, ये सरासर गलत है। और ये मतलब आई होप अभी जनता जाग उठेगी, आई होप जनता समीर को सपोर्ट करेगी, आई होप कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज होगा अंदर से कि आज अगर इस बंदे को हमने सपोर्ट नहीं किया तो कल कोई खड़ा नहीं होगा आपके लिए, कोई नहीं खड़ा होगा। क्रांति जी, पूरी देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ है। आप ट्विटर उठा के देखिए, कू उठा के देखिए, कहीं भी उठा के देखिए, जो जनमानस है वो समीर जी के साथ में, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, और आपकी पूरी फैमिली के साथ में। आप इसमें हौसला बना के रखिए। पर मैं एक और थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। जब से ये केस में, जब कैबिनेट मिनिस्टर ने निजी आरोप लगाना शुरू किए, इतने बड़े आरोप लगाना शुरू किए, मैंने समीर जी का पूरा इतिहास देखा। ही इज बीन अ नो नॉनसेंस ऑफिसर। पर क्या इस केस के बाद से फैमिली में थोड़ा डर आया है कि आप, जैसे आपने बच्चों की बात की, बाहर निकलने में डर लग रहा है, या कोई थ्रेट आ रहा है, कोई प्रेशर है पर्टिकुलरली इस केस में, कि पहले भी समीर जी ने ऐसे प्रेशर्स फेस किए? जी हाँ, जरूर प्रेशर आता है, ऑफ कोर्स आएगा ही ना। कि मैं तो चलो ठीक है, समीर से कंधा लड़ा के मैं लड़ लूंगी, लेकिन बच्चों का क्या, उन्होंने क्या किया है? कल को कोई उठ के आके ट्विटर पे कुछ भी लिख देता है, कोई आके कहता है कि आपको हैंग कर देंगे, आपने इतने पैसे लिए हैं, उसका आप क्या करने वाले हो, कुछ प्लानिंग की है? मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए आप आपकी सिक्योरिटी, हर चीज को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और वो गलत है। और मेंटल प्रेशर जो हो जाता है एक पॉइंट के बाद, वो इतना बिल्टअप हो जाता है कि इंसान सही से सोच भी नहीं पाता। क्रांति जी, मैं एक चीज समझ सकता हूं कि क्योंकि ये केस बहुत हाई प्रोफाइल है, और जब भी मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है कि कभी भी किसी हाई प्रोफाइल केस के अंदर ऑनेस्टली कोई ऑफिसर काम करता है, पत्रकार काम करता है, तो षड्यंत्र रचने की कोशिश की जाती। पर आपको क्यों उसमें ड्रैग किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि वाई आर यू बीइंग ड्रैग? कुछ ऐसे चीजें ट्विटर पे डाली कि कुछ कंपनी, आईपीएल की कंपनी से रिलेट किया गया, इन सब आरोपों पे आप क्या कहना चाहती? मेरी जो वो एक हादसा काइंड ऑफ हुआ था, जो केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था, मैं मेरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका नाम है काकण, जिसको मैंने डायरेक्ट किया है। मेरा 15 दिन का शेड्यूल था कोंकण में, और मैं वहीं पे थी, और इधर आई डोंट नो कोई एक एक्ट्रेस पकड़ी गई, और जल्दबाजी में एक दूसरे न्यूज चैनल ने उसमें मेरा नाम उन्होंने चला दिया बाय मिस्टेक, विदाउट कंफर्मिंग, विदाउट टॉकिंग टू मी, नथिंग। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी, और ये वही एक चैनल ने नहीं, एक दो और चैनल ने चलाया, लेकिन इमीडिएटली वो लोगों ने रिट्रैक्ट किया। लेकिन उसका जो बोलते हैं ना, एक इफेक्ट हो जाता है, एक एस्केलेटिंग इफेक्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को ये महसूस होने लगा कि हाँ, वो एक्ट्रेस मैं ही थी। उसके लिए मैं कोर्ट गई, मैंने मेरी दलीलें रखी, मैंने वो केस फाइट किया कि ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था, और वो चैनल मुझसे माफी मांगे। वो केस में जीती भी, और जो भी रिपोर्टर थे उन्हें दोषी करार दिया गया। ये केस में 2.5 साल लड़ी, और वो केस वहीं पे खत्म हो गया। अब इससे कोई लेना देना है नहीं। मैंने जो 2-2.5 साल में, मतलब सुसाइडल होने तक का जो मेंटल ट्रॉमा होता है, वो भी मैं सहन कर चुकी हूँ। अब वो सारी चीजें जब इंसान भुलाना चाहता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था, आप पीड़ित थे, उसी को आप वापस याद करा के दे रहे हो। अभी छोटे मोटे कोई ना कोई छोटे छोटे पेड पब्लिकेशंस आते हैं, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी चला देते हैं, और लोग क्या होता है, टाइटल देख के हर चीज बिलीव करने लगते हैं। किसी के पास टाइम नहीं पूरा राइटअप पढ़ने का, ठीक है? अच्छा, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव है, उनके फॉलोअर्स दिखते हैं मुझे, 400 फॉलोअर्स, 500 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स, 4000 फॉलोअर्स। लेकिन जो लोग भी नेगेटिव लिख रहे हैं, उनके फॉलोअर्स में देखती हूँ 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? एक पूरी पेड पीआर एजेंसी है जो इस पूरे इसका हिस्सा है, इस पूरे कांड का, और जो
टोटली चाहती है कि एक मेंटल ब्रेकडाउन तक इस फैमिली को इस तरह से पुश किया जाए कि इस जाबाज और ईमानदार ऑफिसर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। लेकिन थैंकफुली हौसला हम बना के रखे हैं, क्योंकि अगर ये लोग एक तरफ है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली पूरा देश है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, और सिर्फ इन लोगों की वजह से आज हम खड़े हैं आप लोगों के सामने, और जो भी हमें बल और हमें जो सहायता मिल रही है वो सिर्फ जनता की वजह से मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्रांति जी, मैंने अपना शो ये बात कह के शुरू किया था, क्योंकि ये पूरा मुहिम हमने सबसे पहले मीडिया में उठाई थी। मैंने कहा था समीर वानखेड़े नहीं टूटेंगे, जितना मैं समझा हूं, जाना हूं और ये पूरे केस को देखा है। आपके फादर इन लॉ ने कहा कि वो अभिमन्यु के रूप में अंदर आए पर अर्जुन के रूप में बाहर आएंगे, और ये महाभारत में सिर्फ और सिर्फ जीत अर्जुन की होगी। आपकी लास्ट जब बातचीत हुई थी समीर से, व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन? क्या वो मॉरली अप थे तो मॉरली डाउन थे? क्या अर्जुन के रूप में समीर निकलेंगे? समीर एक ऐसे इंसान है जो उनका मेंटल स्टेट बहुत हिडन रखते हैं। वो हम 2-3 ही लोग हैं जिनके सामने वो खुल के बाहर आते हैं, और फिर भी एक परत बनाए रखी हुई रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई भी लेवल पे कि मैं या डैडी या मेरी सिस्टर इन लॉ हम कोई भी लेवल पे कहीं टूट जाए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारा हौसला जो है वो बनाए रखे। तो वो कभी ब्रेकडाउन नहीं होते, कभी हमारे सामने ब्रेकडाउन नहीं होते। उन्हें कितना भी टेंशन आए, कुछ भी हो, वो बोलेंगे, वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं लड़ते रहूंगा, इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा। मैं बोली अरे ये हो सकता है, ठीक है, इससे बुरा क्या है, यू नो। तो मैं बोली अरे लेकिन ऐसा वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, और इससे बुरा क्या होगा, लास्ट क्या होता है बुरा, मैं मर जाऊंगा ना, देश के लिए मरूंगा ना, मर जाऊं, चलेगा। दैट इज हिज जज्बा। और जब ऐसे इंसान के पैर खींचे जाते हैं तो इट्स नॉट गुड। मेरा एक और सवाल है, आज ये जो आरोप लगाए गए नवाब मलिक द्वारा अबाउट एक्सटॉर्शन, एक विटनेस आया जिसने कहा मनी ब्राइबरी के एलिगेशंस लगाए समीर वानखेड़े पे, ये एलिगेशंस एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रहा है विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, ये सब कठिन समय, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं जो एलिगेशंस लगाए गए? हैव यू, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से? समीर फॉर यू इज एन ऑनेस्ट मैन, ये एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं? मतलब समीर के बारे में कभी कोई एलिगेशंस लगाता है ना, तो मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि जो मैं रात की नींद सैक्रिफाइस करती हूँ, भले वो जाग रहे होते लेकिन मैं तो नहीं सो पाती ना, बिकॉज उनके फोन चल रहे होते। जो हम लोग बच्चों के हॉलीडे सैक्रिफाइस करते हैं, जो हम लोग पार्टीज डिनर सैक्रिफाइस करते हैं, जो फैमिली गेट टुगेदर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए? ये एलिगेशंस के लिए। तो इससे अच्छा है तो मैं मेरी लाइफ एंजॉय करूँ मेरे पति के साथ, लेकिन हर चीज मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ ना, किसके लिए कर रही हूँ? इस देश के लिए कर रही हूँ। और ऐसे इंसान पे जब एलिगेशन लगते हैं और जब लोगों के मन में दुविधा पैदा होती है और आप उनको मजबूर कर देते हो 2 बार सोचने के लिए एक इंसान के कैरेक्टर के बारे में, तब ये सबसे बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे इंसान के साथ जिसने 15 साल से लगातार अपने काम के लिए मेडल्स जीते हैं, अपने काम को प्रूव किया है, और वो भी बातों से नहीं अपने काम से प्रूव किया है। तो आई थिंक सो कि ऐसे इंसान के साथ ये होना सरासर गलत है। आखिरी मेरा सवाल, मेरे पास 20 सेकंड है, देश की जनता को आप क्या कहना चाह रही हैं? नवाब मलिक हर दिन एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता को आप क्या कहना चाह रही हैं मेरे माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से? इतना कहना चाहूंगी कि आज समीर को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आज आपके देश को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सब उसके साथ खड़े हैं और हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम भारत से प्यार करते हैं, हम हमारे देश से प्यार करते हैं। और अगर हम हमारे देश से प्यार करते हैं तो हम जरूर समीर का साथ देंगे। उसे ऑनेस्टली अपना इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसको ऑनेस्टली ये केस सॉल्व करने दीजिए, वो हो ही जाएगा। और प्लीज मतलब मैं जितना मेरे पति को जानती हूँ, मैं पूरी आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि 1 रुपया मेरा पति खा नहीं सकता। अगर खाते तो आज की डेट में हम लोग महलों में रहते, हम एक छोटे से घर में रहते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है उसका साथ दे। मेरे साथ आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। हौसला बना के रखिए, सच की ही जीत होती है, ये इतिहास बताता है। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि सच के साथ खड़े रहे। कोई भी कितने भी अमीर व्यक्ति हो या पावरफुल व्यक्ति हो, इस देश के न्याय के ऊपर कोई नहीं है। हमारी मुहिम नशा मुक्त भारत के लिए जारी रहेगी और नेशन इज विद समीर वानखेड़े एंड द एनसीबी इन दिस एंटायर
बस्ट ऑफ ड्रग्स। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आप जुड़े और आपने इसको सबसे नंबर 1 मुकदमा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।